आज का हमारा टॉपिक है डिसेबिलिटी या विकलांगता। विकलांगता शारीरिक हो सकती है, इसमें देखने या सुनने जैसी इंद्रियां शामिल हो सकती हैं, इसमें स्पष्ट रूप से सोचने की अक्षमता शामिल हो सकती है या इसमें मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल हो सकता है। विकलांगता वाला व्यक्ति कुछ कार्यों के साथ साथ अधिकांश अन्य कार्यों को करने में भी असमर्थ होता है। विकलांगता वाले कई लोग अन्य क्षेत्रों में पूरी क्षमता रखते हैं। विकलांगता आम होती है, ये 50 में से एक बच्चे में विकलांगता हो सकती है। अब विकलांगता के भी कई प्रकार हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से ही विकलांग होते हैं। कुछ बच्चों में विकलांगता या डिसेबिलिटी जन्म के बाद विकसित होती है। कुछ बच्चों में डिसेबिलिटी चोट लगने के कारण भी उत्पन्न हो सकती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विकलांगता शारीरिक या मानसिक दोष है। विकलांगता वाले बच्चों की विशेष आवश्यकताएं हो सकती हैं और उन्हें शुरुआत में समर्थन की, गाइडेंस की या इंटरफेरेंस की ज़रूरत हो सकती है। अब डिसेबिलिटी या विकलांगता कई प्रकार की हो सकती है, जैसे इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेन इंजरीज, दिमाग में चोट लगने के कारण, शारीरिक विकलांगता या साइकेट्रिक डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से अक्षमता, स्पीच या लैंग्वेज के रूप में भी हो सकती है, मेडिकल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है, डीफ हार्ड ऑफ हियरिंग भी हो सकती है, ब्लाइंडनेस और लो विजन भी हो सकता है। तो ये हम जैसे चित्र में देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज। According to federal law and the university define a disability as a physical or mental impairment that sustainably limits or restricts the condition, manner, or duration under which an average person in the population can perform a major life activity such as walking, seeing, hearing, speaking, breathing, learning, working, or taking care of oneself. तो इसमें हम कई प्रकार की ये टाइप्स आप देख रहे हैं चित्र में। तो इसमें नंबर 1 है अटेंशन डिफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स। सेकंड है ब्रेन इंजरीज भी हो सकती हैं। ब्रेन इंजरी में अकर इन मैनी वेज। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी typically results from accidents. However, insufficient oxygen, stroke, poisoning, or infection may also cause brain injury. Brain injury is one of the fastest growing type of disabilities, especially in the age range of 15 to 28 years. Attention deficit hyperactivity disorders means ADD and ADHD are neurological conditions affecting both learning and behavior. They result from chronic disturbances in the areas of the brain that regulate attention, impulse control, and the executive functions which control cognitive tasks, motor activity, and social interactions. Hyperactivity may or may not be present, treatable, but not curable. ADHD affects 3 to 6% to the population. Number 3 is blindness or low vision. The following terms are used in an educational context to describe students with visual disabilities. Totally blind students learn via braille or other non-visual media. Legally blind indicates that a student has. Number 4 is deaf, hard of hearing. Students who are deaf or hard of hearing require different accommodations depending on several factors, including the degree of hearing loss, the age of onset, and the type of language or communication system they use. They may use a variety of communication methods, including lip reading, sign English, and/or American Sign Language. Learning disabilities. Learning disabilities are neurological based and may interfere with the acquisition and use of listening, speaking, reading, writing, reasoning, or mathematical skills. They affect the manner in which individuals with average or above average intellectual abilities process and/or express information. A learning disability may be characterized by a marked discrepancy between intellectual potential and academic achievement resulting from difficulties with processing information. Next is physical disabilities. विकलांगता विकासात्मक देरी के लिए अलग है। एक विकासात्मक देरी के साथ एक बच्चा अधिकांश अन्य बच्चों की तुलना में अधिक धीरे धीरे कौशल विकसित कर रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास विकलांगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे का विकास जो है वो धीरे होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसका विकास धीरे हो रहा है तो वो विकलांग की श्रेणी में आएगा।
सभी बच्चे एक ही रेट पर डेवलप नहीं करते हैं, सभी बच्चों में विकास की दर एक ही नहीं होती है। इसलिए कुछ बच्चे स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में अधिक समय लेते हैं, कुछ देर जल्दी सीख लेते हैं, कुछ देर से सीखते हैं। विकासात्मक देरी अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो सकती है और आपके बच्चे के विकास के किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। इसके विपरीत सेरेब्रल पाल्सी, आत्मकेंद्रित, कुछ भाषण विकार, श्रवण हानि और बौद्धिक विकलांगता जैसी विकलांगता आपके बच्चे के पूरे जीवन तक चलेगी। अगर बच्चे में ये प्रकार हैं तो फिर ये विकलांगता जीवन पर्यंत चलती है। उनकी विकलांगता के क्षेत्र में स्थायी देरी होती है। शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक अक्षमता तब हो सकती है जब कोई चोट लग जाए, ऊंचाई से गिर जाए, जो कि आपके ब्रेन को इफेक्टेड करे, जो मस्तिष्क को प्रभावित करे। अधिग्रहित मस्तिष्क की चोट के अन्य कारणों में ऑक्सीजन की हानि जैसे अस्थमा या लगभग डूबने के बाद संक्रमण जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, स्ट्रोक हो गए, ये सारी चीज़ें। गंभीर शारीरिक चोटें हो सकती हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी में चोट है या किसी दुर्घटना में हाथ या पैर खोने से शारीरिक विकलांगता हो सकती है। कुछ विकलांग जन्म के बाद विकसित होते हैं। इनमें सुनने की समस्याएं हैं, हृदय की स्थिति है, रक्त है, मेटाबॉलिज्म है, हार्मोनल डिसबैलेंस है आदि। जन्म के तुरंत बाद इन समस्याओं का पता लगाना उन्हें अधिक गंभीर शारीरिक, बौद्धिक, दृश्य या श्रवण अक्षमता बनने से रोक सकता है। कुछ बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं, लेकिन आत्मकेंद्रित जो कारण हैं वो भी आनुवंशिक भी हो सकते हैं।